Hello students, how are you? Take care of yourself, your parents and siblings during COVID-19. Use masks. I am Vinay Kumar Singh, lecturer English at Sardar Patel Inter College, Chergaon, District Jhansi. Students, in previous video we studied the definitions of direct speech, direct narration and indirect narration, some rules for the change in tenses. In previous video I taught if the reported speech is in past tense and if the reporting verb is in past tense and the tense of reported speech is present continuous tense, then present continuous tense is changed into past continuous tense. And if the reporting verb is in past tense and the tense of the reported speech is present perfect tense, it is changed into past perfect tense. So let's start from the next one. Okay, next one. Students, if the reporting verb is in past tense and the tense of the reported speech is in present perfect continuous tense, then we change the reported speech into past perfect continuous tense. Let's see. They said Anuradha has been singing for 3 hours. Focus here. This is present perfect tense and reporting verb is of past tense. Let's change. They said that Anuradha had been singing for 3 hours. Students, focus here. हमने आपको रूल बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी तथा रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, जैसा हमने कहा. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट रूल. Students, let's see another rule. They said, अगला रूल ये है, उदाहरण देख लीजिए. The doctor died in the night. Students, नेक्स्ट रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय, जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट डायरेक्शन में बदलेंगे तो हम इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं. ऐसा नियम है. They said
that the doctor had died. Focus here, another underline part. In the night. Students, once more, if the reporting verb is of past tense and the tense of the reported speech is past indefinite tense, when we change direct speech into indirect speech or indirect narration, we change the tense of past indefinite tense of the reported speech into past perfect tense. Let's see another example. Okay. Raman said Harmeet was writing a novel. नेक्स्ट रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम उस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं. ठीक है, देखिए, रमन said that Harmeet had been writing a novel. Clear, students? Okay. अगर फिर आते हैं इसमें हम नेक्स्ट नियम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, बार बार ये बात रिपीट की जाती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चाहे पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान रखेंगे, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो हम जब इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, तो हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं. देखिए, द बॉयज सेड टू मी रजनी had won the shield. Okay, focus here. This is past perfect tense. Let's change. The boys told me that Rajni had won the shield. Okay, no change in the tense of the reported speech. Why? Because the tense of the reported speech is past perfect tense. Okay, let's see next example. Father said to mother, Abhay had been swimming in the river for 3 hours. Okay,
Again, focus here. The tense of the reported speech, it is perfect continuous tense, past perfect continuous tense. Again, father told mother that Abhay had been swimming in the river for 3 hours. Students, here again we have not changed the tense. क्यों नहीं बदला टेंस रिपोर्टेड स्पीच का? क्योंकि नियम ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई बदलाव उसके टेंस में नहीं करते हैं, इसलिए इसका टेंस भी नहीं बदला। ओके, लेट्स सी अदर रूल्स. लेट मी रफ इट. ओके, students, I have taught you present total changes in the present indefinite tense, present continuous tense, present perfect and present perfect continuous, and past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Let's see the rules for the change of tenses of future tense. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है और रिपोर्टेड स्पीच में शैल या विल का प्रयोग यानी फ्यूचर टेंस है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय शैल को शुड या वुड, विल को वुड या शुड में नियमानुसार हम बदल देते हैं। जो नियम है उसके अनुसार हम उसको बदलते हैं। ये फोकस करेंगे, हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, देखिए, आई सेड I shall play chess. ओके, देखिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में शैल का प्रयोग हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस कैसे बदलेंगे? आई सेड दैट आई शुड प्ले चेस। ओके, यहाँ हमने देखा शैल को शुड में बदल गया। क्यों बदला गया शुड में? क्योंकि यहाँ जो करता है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के संग शैल का प्रयोग होता है या शुड है। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनुष्का शेड। अगर हम इसमें जो है विल का प्रयोग होता है तो क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे, कैसे बदलते हैं? रोहिणी विल बाई अ बुक। ओके, अनुष्का said that रोहिणी would buy a book। ये हमने देखा, सीधा सीधा इस पर बदलाव हो गया। आगे एक और देख लीजिए, रंजीत said to me
Okay, I shall help you. I shall help और बढ़ा दें anyone. ओके, अब देखिए इसको, रंजीत told me that he would help anyone. हमने बताया था आपको कि शैल का शुड या वुड हो सकता है, यहाँ वुड में बदल दिया गया। क्यों बदला गया? क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन, इसके संग विल का प्रयोग होता है, विल का पास वुड, तो यहाँ इसके संग अनुसार वुड का बदल, ये ध्यान दें। अब अगला नियम ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो और रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल ऑक्सिलरीज कैन आए तो हम कुड में बदल देते हैं, मे आता है तो माइट में बदल देते हैं। अगर कुड आएगा, शुड आएगा, माइट आएगा, वुड आएगा, मस्ट आएगा, नीडंट आएगा, डेरंट आएगा, ऑट टू आएगा, मस्ट आएगा, तो हम इनमें परिवर्तन नहीं करेंगे। कैन को कुड में तो बदलेंगे, मे को माइट में बदलेंगे, लेकिन जब कुड होगा या माइट होगा, शुड होगा या वुड होगा, मस्ट होगा, हैड बेटर होगा, यूज्ड टू होगा, ऑट टू होगा, तो इनमें हम बदलाव नहीं करेंगे। लेट्स सी दीज रूल्स, ओके, थ्रू एग्जाम्पल्स। देखिए, राधा शेड आई कैन स्विम इन द रिवर। ओके, लेट्स चेक। राधा said that she could swim in the river. Here can has been changed into could. यहाँ can का प्रयोग हम लोगों ने can को क्या कर दिया गया, could में बदल दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, the officer said to Aman, you may go home. Let's see. The officer told Aman that he might go home. Okay, again may has been changed to might. may को हमने might में बदल दिया। देखिए, my grandmother often said to me, one should help the needy. Let's see, my grandmother often told me
that one should help the needy. Focus here. Should here remains unchanged. यहाँ शुड को हम लोगों ने कोई बदलाव नहीं किया. ओके, आगे देखिए. They said we must go there. They said that they must go there. Once more, must remain must. Okay, students, I think you will have understood the rules of the change of the model. Okay, let's see some other rules. Okay, let me erase it. Students, you will have to remember these rules. Always remember, you should always remember the rules. Now come to the exceptions. We were studying rules for the change of tenses. अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस संबंधी अपवाद, एक्सेप्शंस. Exceptions related to the change of tenses, जो अपवाद है. अब देखिए, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ. उदाहरण से पहले समझते हैं, फिर नियम. ठीक है ना. माई geography teacher said to me, the earth moves on its axis. स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने नियम ये पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं. वो भी नियम के अनुसार नियम बता दिया आपको. अब यहाँ हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस का होगा तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं करते. ओके, instead of the tense of the reporting verb being past one, we do not make change in the tense of the reported speech under some circumstances, under some situations. ये क्या है? पहला है, अगर कहीं रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है. यूनिवर्सल ट्रूथ हिंदी में बोलते हैं शाश्वत सत्य. इसका मतलब है दैट इज रेलिवेंट एनी टाइम, जो आज भी रेलिवेंट है, अभी भी वो वैसा ही सत्य है, तो उसको जो है सदा सत्य रहने वाली बात है. जैसे देखिए, माई जियोग्राफी टीचर टोल्ड मी दैट the
earth moves on its axis. Students, here we didn't make any change. Okay, let's see another example. दूसरा रूल, दूसरा एग्जाम्पल. अगर हैबिचुअल फैक्ट है तो हम यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है कोई हैबिचुअल फैक्ट है तो हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते. जैसे दे ऑलवेज सेड, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. कुत्ते अजनबी लोगों पर भौंकते हैं. ये अक्सर आपने पढ़ा भी होगा. देखिए, दे ऑलवेज सेड दैट डॉग्स बार्क एट strangers. Students, here we also didn't make any change. Why? In the tense of the reported speech, because inside the reported speech there is habitual fact. Okay, तो जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट होगा तो हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे. और भी एक्सेप्शंस हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, you will do exercises from your grammar book of grammar. Okay, in next video we'll study some more exceptions, some more rules. Take care of yourself. Thank you.